नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी न्यूज स्टूडियो से। मैं हूं सपना। कौन सी है दिन भर की अहम और खास खबरें देखेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर आज की सुर्खियों पर। आइए देखते हैं आज की वीएनएम हेडलाइंस। इंदौर में मंदिर में बावड़ी की छत धंसने से 13 की मौत। रामनवमी के हवन के दौरान दुर्घटना। वडोदरा से अहमदाबाद कार के टोल टैक्स में 10 रुपए की बढ़ोतरी। गुजरात कांग्रेस ने उठाए सवाल। और वडोदरा में रामनवमी पर शोभा यात्रा में दो बार पथराव। असामाजिक तत्वों द्वारा शांति बिगाड़ने के प्रयास। मध्य प्रदेश के इंदौर में रामनवमी पर हवन कर रहे श्रद्धालु बावड़ी की छत टूट जाने से कई फीट गहरे पानी में कुएं में गिर गए। इंदौर के बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर में रामनवमी पर बावड़ी की छत धंसने से 13 लोगों की मौत हो गई। 40 फीट गहरी बावड़ी में 30 से ज्यादा लोग गिरे थे। बावड़ी से कुल 11 शव निकाले गए, जबकि पुलिस ने रस्सियों की मदद से 19 लोगों को बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां 2 लोगों ने दम तोड़ दिया। इस बावड़ी में 4 से 5 फीट पानी है। इधर मंदिर में दर्शन करने आया एक बच्चा भी लापता है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक सपना संगीता रोड स्थित स्नेहनगर में हवन के दौरान हादसा हुआ। लोग बावड़ी की छत पर बैठे थे, वजन से उसकी छत टूट गई और लोग नीचे गिर गए। ये मंदिर करीब 60 साल पुराना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि सरकार घायलों का इलाज कराएगी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया, बावड़ी से निकाली गई 11 डेड बॉडीज में से 10 महिलाओं की है। अभी तक हादसे में हम 13 लोगों को खो चुके हैं। मौके पर प्रशासन रेस्क्यू कार्य में जुटा हुआ है। हादसे की जाँच के आदेश भी दिए जा चुके हैं। जिन लोगों का बचाव किया गया है उनका इलाज किया जा रहा है। गुजरात के अहमदाबाद में कांग्रेस नेताओं ने पत्रकार परिषद संबोधित कर गरीब आदिवासी इलाके के 83,556 परिवारों के नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के लाभों से वंचित रहने पर सरकार पर निशाना साधा। यूपीए सरकार द्वारा गरीब અને અતિ ગરીબ પરિવારોને ફૂડ સિક્યોરિટી એક્ટના માધ્યમથી અનાજ મળે। આ દેશમાં કોઈપણ નાગરિક ભૂખ્યો ના સૂવે એની વ્યવસ્થા, એની ચિંતા यूपीए સરકારે કરી હતી। પણ દુઃખ સાથે કહેવું પડે કે સરકાર બદલાતા જ ઉદ્યોગપતિઓના મિત્રો ઉદ્યોગપતિઓને લાભ અપાવે, પણ ગુજરાત રાજ્યના જે ગરીબ આદિવાસીઓ છે એ આદિવાસી વિસ્તારના લોકોને મળતી સુવિધા, આદિવાસી વિસ્તારના લોકોને જે NFSA નેશનલ ફૂડ સિક્યોરિટી એક્ટ હેઠળ મળતું અનાજ બંધ કરવાનું પાપ ભાજપા સરકાર કરી રહી છે। કેટલાક આંકડા સામે આવ્યા છે કે માત્ર આદિવાસી વિસ્તારની વાત કરીએ તો નર્મદા જિલ્લામાં 7,595 રાશન કાર્ડ કમી કરવાની વાત છે। ડાંગની વાત કરીએ તો ડાંગ જિલ્લામાં પણ 7,500 જેટલા રાશન કાર્ડ કમી કરવાની વાત છે। નવસારીના વાંસદા તાલુકાની વાત કરીએ તો માત્ર એક તાલુકામાં 3607 જેવા NFSAના જે રાશન કાર્ડ છે કમી કરવાની વાત છે। એક તરફ કોઈ પણ પ્રકારનો આર્થિક સર્વે નથી થયો, તો કયા આધાર ઉપર આ સરકાર ગરીબ આદિવાસીઓના NFSAના કાર્ડ બંધ કરી રહી છે? છોટાઉદેપુરના આંકડા હોય, દાહોદ જિલ્લાના આંકડા હોય, પંચમહાલ જિલ્લાના આંકડા હોય, ભરૂચ જિલ્લાના આંકડા હોય, મહીસાગરના ખાનપુર, વીરપુર, બાલાસિનોર વિસ્તારના આંકડા હોય, વલસાડના ઉમરગામ, કપરાડા, ધરમપુરના આંકડા હોય, સાબરકાંઠાના પોશીના જેવા જ્યાં 3,806 જેટલા રાશન કાર્ડ કમી કરવામાં આવ્યા છે। માત્ર આ આદિવાસી વિસ્તારની વાત કરીએ તો સમગ્ર આદિવાસી વિસ્તારમાં 83,500
રાશન કાર્ડ કમી કરશે એટલે 83,556 આદિવાસીઓને નેશનલ ફૂડ સિક્યોરિટી એક્ટના કાયદા હેઠળ જે અનાજ મળતું હતું એ લાભથી એ વંચિત થશે. 83,000 પરિવારોને ભૂખ્યા રાખવાનું પાપ એ આ સરકાર કરવા જઈ રહી છે. એક તરફ બેફામ મોંઘવારી, બીજી તરફ આવકના ઘટતા જતા સ્ત્રોત અને આર્થિક સંક્રમણના પારાવાર હાલાકી ભોગવી રહેલા દેશના નાગરિકોને અને ગુજરાતના નાગરિકો કઈ રીતે પોતે પરિવહન કરી શકે તે પણ હવે મુશ્કેલ થતું છે અને મોંઘું થતું જશે. ખાલી અમદાવાદ વડોદરા એક્સપ્રેસ હાઈવે ઉપર ટોલ ટેક્સમાં જે વધારો થયો એ 10થી 15% વધારો થવાનો છે. એટલે કે અમદાવાદથી વડોદરા જવાના આપણે જે પહેલાં ચૂકવવા પડતા હતા એમાં 15થી 20 રૂપિયાનો વધારો થશે. એટલે કે સિંગલ ટોલ જે છે 135 રૂપિયા થશે અને રિટર્નના 200 રૂપિયા થઈ જશે. આ છે લાઇટ મોટર વ્હીકલ માટેનો. અમદાવાદથી નડિયાદની સિંગલ ટ્રીપ માટે 65 રૂપિયા અને રિટર્ન ટ્રીપના 55 રૂપિયા થશે. અમદાવાદથી આણંદના સિંગલ ટ્રીપના 85 અને રિટર્ન ટ્રીપના 125 રૂપિયા થશે. આ ભાવ વધારાના કારણે સમગ્ર પરિવહન મોંઘું થશે અને અન્ય વાહનો માટે પણ આ મોંઘવારીનો માર અંતે તો સામાન્ય જનતા ઉપર જ આવવાનો છે. આ એકમાત્ર નેશનલ હાઈવેના ટોલ ટેક્સની વાત કરું, પણ દેશની અંદરના તમામ નેશનલ હાઈવે ઉપરના જે ટોલ છે એ ટોલ ઉપર જે ટેક્સ વસૂલાત છે એમાં 10થી 15% વધારો 1 એપ્રિલથી થઈ રહ્યો છે. 1 એપ્રિલથી વિવિધ પ્રકારના જે ભાવ વધારા ઝીકવામાં આવી રહ્યા છે, ત્યારે કેન્દ્રમાં આવેલી સરકારે દેશની જનતા આગળ વાદો કર્યો હતો અચ્છે દિનનો. ત્યારે આપણને ખબર પડે છે અચ્છે દિનની વાસ્તવિક વાત ચૂંટણી સભામાં જે અચ્છે દિન હતા એ વ્યાખ્યા અલગ હતી અને હકીકતમાં અચ્છે દિન એટલે કે દરેક ચીજ વસ્તુમાં મોંઘવારી. એ પછી તમારે જીવન જરૂરિયાતની ચીજ વસ્તુ ખરીદો તેમાં મોંઘવારી. તમે જ્યાં જશો પરિવહન કરશો ત્યાં ટોલ આવશે, એ ટોલ ઉપર ટેક્સ ભરવાનો પણ વધારો. તમે બેન્કિંગ ક્ષેત્રમાં જશો એનો પણ ટેક્સ વધારો. આમ સમગ્ર દ્રષ્ટિએ સામાન્ય માણસને, મધ્યમ વર્ગને જીવન જીવવું મુશ્કેલ થશે. गुजरात के वडोदरा शहर में रामनवमी के मौके पर कुम्हारवाड़ा कोयली फलिया से निकलने वाली रामजी यात्रा में भी पथराव की घटना सामने आई। रामनवमी के मौके पर वडोदरा के फतेहपुरा इलाके के कुम्हारवाड़ा कोयली फलिया में भगवान राम की महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें वडोदरा की सांसद रंजनबेन भट्ट, विधायक मनीषा वकील समेत के जनप्रतिनिधि और अन्य अग्रणी शामिल हुए। नगर प्राथमिक शिक्षा समिति के सदस्य रंजीत राजपूत द्वारा हर साल शोभा यात्रा का आयोजन किया जाता है, जिसमें महाआरती कर मंगल कामना की गई। भगवान रामनवमीना दिवसे चैत्री नवरात्रिनी पूर्णाहुति આજે આખાય ભારત દેશમાં ભગવાન રામજીની શોભાયાત્રા પણ કરવામાં આવે છે. સંસ્કારી નગરી વડોદરા ઉત્સવની પણ નગરી છે. વડોદરાના તમામ લોકો ખૂબ ભાવપૂર્વક ઉત્સવ મનાતા હોય છે. આજે રામનવમીના દિવસે કુંભારવાડા કોયલી ફળિયામાં પણ અમારા શિક્ષણ સમિતિના સભ્ય રંજીતભાઈ રાજપૂત દર વર્ષે ભગવાન રામજીની શોભાયાત્રાનું આયોજન કરતા હોય છે. ખૂબ લોકો, ભાવિક ભક્તો આ યાત્રામાં જોડાતા હોય છે, ભગવાન રામના આશીર્વાદ લેતા હોય છે. આજે મને પણ શ્રી ભગવાન રામના આરતી દર્શનનો લાભ મળ્યો. રણજીતભાઈને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું. સાથે મારા વડોદરાવાસીને પણ રામનવમીની ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા અને ધન્યવાદ આપું છું. इस शोभा यात्रा के फतेहपुरा पहुंचने पर फिर एक बार यात्रा पर पथराव किया गया, जिसके चलते मौके पर घर्षण देखा गया। आज दोपहर में भी विश्व हिंदू परिषद की यात्रा पर पथराव हुआ था, जिसके चलते यहां चुस्त पुलिस बंदोबस्त था। उसके बावजूद कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा यात्रा पर पथराव कर कौमी एकता को भंग करने की कोशिश की गई। वडोदरा के पुलिस कमिश्नर डॉक्टर शमशेर सिंह ने खुद मौके पर पहुंचकर फतेहपुरा 4 रास्ता पर टीयर गैस छुड़वाकर भीड़ को तितर-बितर कर दिया। કેટલાક લોકો દ્વારા વડોદરા શહેરની શાંતિ દોડવા માટેનો આ નિરર્થક પ્રયત્ન છે. આજે વડોદરા શહેરમાં રામનવમીના દિવસે અનેક શોભાયાત્રાઓ ભગવાન શ્રી રામની રામ જન્મ નિમિત્તે અને વડોદરા શહેરમાં એક ધાર્મિક વાતાવરણ ઉત્સાહ અને ઉમંગપૂર્વક સર્જાય એના માટે યાત્રાઓ કાઢવામાં આવી હતી. આજે મોટા ભાગની યાત્રાઓ અલગ અલગ વિસ્તારમાંથી, હું પોતે એક યાત્રામાંથી જ હાલમાં સ્થળ પર આવ્યો છું અને યાત્રાઓ સુખપૂર્વક શાંતિથી નીકળી રહી છે. લોકો
જોડાઈ રહ્યા છે, લોકો ઉત્સાહ અને ઉમંગપૂર્વક ભગવાન શ્રી રામનો જન્મદિવસ ઉજવી રહ્યા છે. અને ત્યારે કેટલાક કિસ્મો દ્વારા આ શાંતિ ડોળાય એના માટે કાંકરી ચાળાના રૂપે પથ્થર મારીને ભાગી જવાની ઘટનાઓ પણ ધ્યાનમાં આવી છે. કેટલીક જગ્યા પર અફવાના આધાર પર પણ સામે ટોળાવા આવી જવાની પણ ઘટનાઓ ધ્યાનમાં આવી છે. પરંતુ પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટ દ્વારા યોગ્ય કાર્યવાહી કરીને આ દિશાની અંદર કડક કાર્યવાહી કરીને તરત આવા લોકોને પકડી પણ લેવામાં આવ્યા છે. અને ભવિષ્યમાં પણ જે લોકોનું ધ્યાનમાં આવ્યું છે તમામ પાસે પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટ એ યોગ્ય કાર્યવાહી કરવાનું છે. पूरे गुजरात में आज रामनवमी पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, लेकिन वडोदरा के फतेहपुरा में शोभा यात्रा में घर्षण सामने आया। राम जन्मोत्सव के मौके पर हिंदू संगठन विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा वडोदरा में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें हाथों में झंडों के साथ बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। गाजे बाजों के साथ निकली शोभा यात्रा के फतेहपुरा पांजरीगर मोहल्ले के पास पहुंचने पर अचानक पथराव शुरू हो गया, जिससे अफरा तफरी मच गई। इस दौरान कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा मस्जिद पर भी पत्थर फेंके गए और ठेलों को तोड़ दिया गया। इस घर्षण के चलते फौरन बाजार बंद कर दिए गए और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कुछ ही मिनटों में स्थिति पर काबू पा लिया। रामनवमी की शोभा यात्रा के दरमियान एक मस्जिद के आगे थोड़ा घर्षण जैसा हुआ था, उसमें कोई इश्यू बना नहीं है। अभी पूरे विस्तार में शांति है। शोभा यात्रा अच्छे से अपने एरिया में आगे निकल गई है। लोग जो इकट्ठा होते हैं उनको पुलिस ने समझा के अपने अपने घरों में भेज दिया है और कोई भी किसी को कुछ इंजरी हुई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और पूरे विस्तार में पूरी शांति। अभी पुलिस का पूरा बंदोबस्त रखा गया है यहाँ पे और वो अभी चालू। यात्रा अपने रूट पे जैसे निकल गई, ये यात्रा आगे निकल गई अपने तरीके से और कोई इश्यू सर नहीं। वाहनों की कितनी तोड़फोड़ की गई है? कोई तोड़फोड़ नहीं हुई है, कुछ तोड़फोड़ जैसा कुछ नहीं हुआ है। बस मस्जिद के आगे निकल रही थी, उस वक्त थोड़े लोग इकट्ठा हुए थे तो उनको सबको समझा के अपने अपने जगह भेज दिया और कोई इश्यू नहीं। इस घटना के बाद भी विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने फिर से शोभा यात्रा निकालने की जिद की, लेकिन कारेलीबाग पुलिस थाने निकट से विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों को पुलिस ने समझा बुझा कर तितर-बितर कर दिया। घटना के बाद पुलिस ने संवेदनशील इलाकों से कई असामाजिक तत्वों को हिरासत में ले लिया। देश के 22 राज्यों में आम आदमी पार्टी द्वारा मोदी हटाओ देश बचाओ कैंपेन शुरू किया गया है, जिस पर गुजरात प्रदेश आप अध्यक्ष ईसुदान गढ़वी ने पत्रकार परिषद में सरकार पर कई आरोप लगाए। आज देशभर में मोदी हटाओ देश बचाओ अभियान अंतर्गत आम आदमी पार्टीए लगभग ऑलमोस्ट 22 थी वधु राज्यों में आ पोस्टर केम्पेन चलाव्યું છે। 23 मार्च शहीद भगत सिंहनी सुखदेव राज्यगुरुनी पुण्यतिथि निमित्ते दिल्ली में एक सभा भरवामां आवी हती अने एमां नक्की थयुं के भाई जे रीते प्रधानमंत्रीश्रीए बेरोजगारों ने 2 करोड़ रोजगारी आपवानी वात करी हती ए न मळी वर्षे। ખેડૂતોને દેવું માફ કરવાની વાત કરી હતી, ખેડૂતોનું દેવું માફ ન થયું। મજૂરો પરેશાન છે, નાના વેપારીઓ પરેશાન છે, વિદ્યાર્થીઓ પરેશાન છે, નોજવાનો બેરોજગારો પરેશાન છે। આ બધાની સાથે દગો થયો છે અને એક વાત સૌના ભારતીયોના મગજમાં બેસી રહી છે કે શું પ્રધાનમંત્રી ભણેલા ગણેલા હોવા જોઈએ? आज दिल्ली में पण ए पोस्टरो लाग्या कि प्रधानमंत्री शू भणेला गणेला होवा जोईए? जो भणेला हशे तो कोईपण निर्णयों लेता पहला ए 100 वार विचारशे निर्णयों प्रजाहितना छे के नहीं। कोई एम ज कोई उद्योगपति साइन करावीने लई जाए अने मालामाल पोते थई जाए अने प्रधानमंत्री छे एने खबर न होय, एवुं पण बनी शके। कारण के कोईपण अधिकारी छे, जीपीएससी यूपीएससी सहितनी आपणी परीक्षाओं होय छे, क्लार्क में इवन कॉन्स्टेबल में पण आपणे मिनिमम क्राइटेरिया राख्यो छे भणेला गणेलानो। तो प्रधानमंत्री भणेलो गणेला नहीं होय तो शुं थाय? मान लो कोई उद्योगपति छे ए पोर्ट लई जाए, एरपोर्टो लई जाए, बनी शके, आवुं कंई पण थई शके। एना अनुसंधाने आजे ए पण पोस्टरो लाग्या कि शुं प्रधानमंत्रीजी भणेला गणेला होवा जोईए अने एना अनुसंधाने एक फोटो वायरल थयो छे जेमां दिल्ली पोलीसनो जमादार ए पोस्टरों ने उखाड़े छे। शू भारतीय जनता पार्टी इच्छे छे कि देशनो प्रधानमंत्री भणेलो गणेलो होवो जोईए? हाँ के ना?
તમે એ પોસ્ટરો લાગ્યા છે કે દેશનો પ્રધાનમંત્રી ભણેલો ગણેલો ના હોવો જોઈએ, તો ભાજપ બતાવે કે ના હોવો જોઈએ. આજે સામાન્ય મેં કીધું ને કે ક્લાસ 4ની એક્ઝામમાં પણ આપણે જો ભણેલા ગણેલાની ક્રાઇટેરિયા રાખતા હોય તો પ્રધાનમંત્રી માટે કશું જ નહીં. અને એના કારણે તમે વિચાર કરો, ભણેલા ગણેલા ન હોવાના કારણે કોઈને કોઈ રીતે ફોસલાવી, સમજાવી અને સાઈનો કરાવીને લઈ જતા હતા. આવું બની શકે. આજે મોદી હટાવો દેશ બચાવોના પોસ્ટરો ગુજરાતમાં પણ લાગ્યા છે અને મને આશ્ચર્ય થાય છે કે ગુજરાતની પોલીસ અમારા કાર્યકર્તાઓને અટકાયત કરી છે, ધરપકડો કરી છે. કયા આધારે કરો છો તમે? શું લોકતંત્ર ખતમ કરવું છે આપણે સૌએ? લોકતંત્રમાં એ પણ નથી. આજે અરવિંદ કેજરીવાલજી વિરુદ્ધ પોસ્ટરો લાગ્યા હતા, તો અમે તો નથી કીધું કે ભાઈ આને 500,000 લોકોની ધરપકડ કરો. તો નરેન્દ્ર મોદી વિરુદ્ધ પણ લોકોની ઈચ્છા હોય કે હવે બહુ થયું. 10મી એપ્રિલે આ કેમ્પેન यूनिवर्सिटियों સુધી જશે. वीएनएम टीवी पर आप देख रहे हैं वीएनएम न्यूज। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, ब्रेक के उस पार खास खबरें अभी और भी हैं। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय, भारत का जॉय। मौसम विभाग के अनुमान के तहत गुजरात के पाटण में आज फिर एक बार बिन मौसम बारिश हो रही है। गुजरात मौसम विभाग ने गुजरात के कई जिलों में बारिश की संभावना जताई थी। गुजरात के पाटण जिले में आज मौसम विभाग के अनुमान के तहत एक बार फिर से बिन मौसम बारिश देखी गई। सिद्धपुर समेत के कई गांवों में धुआंधार बारिश दर्ज की गई। अचानक गर्मी के बाद मौसम में बदलाव हो गया है और बिजली के कड़ाकों और तेज हवाओं के साथ बारिश टूट पड़ी, जिससे किसान सकते में आ गए हैं। गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थधाम अंबाजी में भी आज मौसम विभाग के अनुमान के तहत बारिश का कहर देखा गया। यहां तेज हवाओं के साथ गर्मियों के मौसम में बरसाती माहौल देखने मिला। कई जगहों पर बारिश के साथ ओले भी पड़े। पूरे देश में आज 30 मार्च को रामनवमी का त्यौहार मनाया जा रहा है। रामनवमी के मौके पर गुजरात के वडोदरा शहर में भी राम मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखी गई। वडोदरा के पत्थर गेट स्थित राम मंदिर में भक्तों ने भगवान राम के दर्शन कर मंगल कामना की।
आज देश भर में चैत्र नवरात्र की नवमी और राम नवमी का पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। माना जाता है कि भगवान राम का जन्म राम नवमी के दिन हुआ था। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को जन्मे भगवान राम का जन्मोत्सव देश भर में उत्साह के साथ हर वर्ष मनाया जाता है। इस दिवस को प्रत्येक वर्ष भगवान राम के जन्मदिन के रूप में मनाते हुए विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन भी किए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम का जन्म मध्याह्न काल के दौरान हुआ था, जो हिंदू दिवस के मध्य में है। आज रामनवमी के उपलक्ष्य में वडोदरा के राम मंदिरों में भी भाविक भक्तों की भीड़ देखी गई। वडोदरा के पत्थरगेट इलाके में राम जी मंदिर है, जहां आज सुबह से ही भक्तों ने कतारों में लगकर भगवान राम के दर्शन का लाभ लिया। श्री राम जन्मोत्सव हर वर्ष बड़ी भाग मनाया जाता है। इस पर उसी उत्साह के अनुसार मनाया जा रहा है। चैत्र शुक्ल नवरात्रि में भगवान श्री राम नवमी के दिन प्रकट हुए थे। गुजरात के वडोदरा में पिछले दिनों धराशायी किए गए इंदिरा नगर का सामान कॉन्ट्रैक्टर अन्य जगहों पर ले जाकर मनमानी कर रहे हैं। वडोदरा के गोत्री में इंदिरा नगर को पिछले दिनों कॉरपोरेशन द्वारा ध्वस्त कर दिया गया था, जिसे करीबन 3 महीने बीत चुके हैं, लेकिन कॉरपोरेशन द्वारा यहां से अब तक वस्तुएं नहीं हटाई गई है। ऐसे में कुछ कॉन्ट्रैक्टर यहां से मलबे समेत की चीज़ों को अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पर ले जाकर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जेसीबी और डंपर से 2 दिनों से यहां से मलबा और अन्य सामान हटाया जा रहा है, लेकिन वडोदरा कॉरपोरेशन के अधिकारियों या कर्मचारियों का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। आज वडोदरा कॉरपोरेशन में रामनवमी की छुट्टी के चलते बेखौफ कॉन्ट्रैक्टर ने यहां से कई वस्तुएं उठा ली। आ इंदिरानगर जग्या है અને અહીંયા આગળ અમારી સ્ટીલ અને સિમેન્ટની અને તરા સેન્ટરિંગની જગ્યા હતી અમારી, જે હવે કોર્પોરેશને તોડી પાડેલ છે। તો અમારું જે તોડી પાડેલ જે હતું કચરો છારું એ અમે અમારા બીજા જગ્યાએ ગોડાઉન રાખેલ છે, ત્યાં આગળ વપરાશ માટે અમે અમારું છારું ભરી રહ્યા છીએ અહીંયાથી। કોર્પોરેશનમાં પરમિશન લીધી છે આને? ના, કોર્પોરેશનમાંથી પરમિશન નથી લીધેલી અમે, પણ અમારી જગ્યા અમારું જે વસ્તુ હતું એ જ અમે ઉપાડી રહ્યા છે। અમે કોર્પોરેશનની કોઈ વસ્તુ લઈ રહ્યા નથી। અમારું જે ઓફિસનું જે પુરાણ હતું, જે ઓફિસ અમે તોડી પાડી હતી, એનું જ અમે પુરાણ લઈ રહ્યા છે છારું। જગ્યા કોર્પોરેશનની છે તો ભાઈ તમારે પૂરા પરમિશન તો લેવી પડે ને। જગ્યા કોર્પોરેશનની પણ પહેલાં બી અમે જગ્યા કોર્પોરેશનની જગ્યામાં જ અમારી ઓફિસ બનાવી હતી, જ્યાં આગળ અમે વર્ષો સુધી ધંધો કર્યો છે। પરંતુ હવે કોર્પોરેશનને ઉપરથી ઓર્ડર આવવાથી એ લોકોએ તોડી પાડેલો હોવાથી અમે અમારું જે છારું પુરાણ હતું તો અમે બીજે જગ્યા રાખેલો હોવાથી એને અમે અમારું છારું પુરાણ બીજી જગ્યાએ લઈ જઈને અને અમારો ધંધો કરી રહ્યા છીએ। गुजरात के वडोदरा शहर में कई इमारतें ऐसी है जो अप्रिय घटनाओं को न्योता दे रही है, पर पालिका है कि मामले की सुध लेने के लिए तैयार नहीं। वडोदरा शहर में आज भी कई पुराने इलाके हैं जहां सालों पुरानी इमारतें वडोदरा के ऐतिहासिक इतिहास की गवाही दे रही है, लेकिन उनमें से कई इमारतें अब खस्ताहाल हो चली है और कभी भी गिर सकती है। दांडे बाजार का राजश्री अपार्टमेंट उन्हीं में से एक है जो सालों पुराना है। इस खस्ताहाल इमारत में आज भी कई लोग रहते हैं। ऐसे में बड़ी दुर्घटना यहाँ घट सकती है, लेकिन कॉरपोरेशन या स्थानीय निवासी मामले की सूद नहीं ले रहे हैं। आ बिल्डिंग लगभग 70 થી 80 વર્ષ જૂની છે અને ત્યાંના સ્થાનિક રહીશોને પણ એવી કંઈ એ થતું નથી કે લાવ આ બિલ્ડિંગ બહુ જર્જરિત થઈ છે, પડવાની તૈયારીમાં જ છે, તો પણ એ લોકો કોઈ એક્શન કરાવતા નથી ને કોર્પોરેશનવાળા પણ આવીને જોતા નથી। અહીંયા અવર જવર કરતા લોકોને પણ કંઈ જાનહાનિ થઈ શકે છે, જેવી રીતે કે આ 2 વ્હીલર 4 વ્હીલર પણ નુકસાન થયેલું છે। રાતે કંઈક મોટા મોટા પોપડા જેવું પડેલું, એ છતાં કોઈની આંખ ઉઘડતી નથી, ના ત્યાંના સ્થાનિક રહીશોની કે ના કોર્પોરેશનવાળાની। बड़ौदा शहर के अंदर बहुत सारी इमारतें जर्जरित हालत में, कई मकान भी जर्जरित हालत में। आज हम बड़ौदा शहर के दांडिया बाजार विस्तार में खड़े हैं। यहाँ राजश्री बिल्डिंग है, ये भी देख सकते हो जर्जरित हालत में। ऐसी कई इमारतें बड़ौदा शहर में जर्जरित हालत में। वडोदरा महानगर पालिका ऐसी जर्जरित इमारत और जो भी मकान है उनको फक्त नोटिस देती है। नोटिस देने के बाद आगे कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। हमारी एक मांग है कि आगामी दिन में बारिश का मौसम आने वाले है, ऐसी जर्जरित इमारत अगर गिर गई और कोई मर गया तो जवाबदार कौन रहेगा। हमारे वडोदरा महानगर पालिका के महाध्यक्ष, चेयरमैन साहब, मेयर साहब सभी से एक विनती है, अगर आप नोटिस दे रहे हो तो साथ में 15 दिन के अंदर ऐसी इमारतें
और जो भी मकान है उतार दिए जाए। साथ में यहाँ बड़ौदा फायर ब्रिगेड की बहुत बड़ी ऑफिस थी, वो जर्जरित हो गई थी, तो वडोदरा महानगर पालिका ने त्वरित कामगिरी करके उतार दिया था। तो वडोदरा शहर में जो भी इमारतें जर्जरित है, जो भी मकान जर्जरित है, वडोदरा महानगर पालिका जल्द से जल्द उतार दे, ऐसी हमारी मांग है। VNM टीवी पर आप देख रहे हैं VNM न्यूज। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, ब्रेक के उस पार खास खबरें अभी और भी हैं। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय, भारत का जॉय। रामनवमी के पावन मौके पर गुजरात के वडोदरा के काला घोड़ा स्थित रामजी मंदिर में भक्तों ने पहुंचकर भगवान के दर्शन किए। आज देश भर में रामनवमी का उत्साह देखने मिल रहा है। राम मंदिर में भक्तों की भीड़ देखी जा रही है। वडोदरा के काला घोड़ा निकट पुराना राम मंदिर है। करीब 400 साल पुराने इस मंदिर में दर्शन के लिए दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचे। इस मौके पर मंदिर को सुंदर रूप से सजाया भी गया। हजारों की संख्या में भक्तों ने भगवान राम के दर्शन कर सुख और समृद्धि की मंगल कामना की। बसो 40 पुराना साल हमारा राम जी मंदिर है, जिसमें मैं छेल्ले 50 साल से तो मैं खुद सेवा कर रहा हूँ। और हर साल हमारे यहाँ राम महोत्सव, जन्म महोत्सव मनाया जाता है। गुजरात के कई शहरों में रामनवमी के उपलक्ष्य में मंदिरों में धार्मिक आयोजन किए गए, जिसमें बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए। देश भर में आज रामनवमी भक्तिभाव से मनाई जा रही है। गुजरात के अरावली जिला के मोड़ासा में भी रामनवमी की धूम देखने मिली। मोड़ासा में 29 साल पहले शिरडी साई बाबा सत्संग मंडल द्वारा साई बाबा मंदिर बनाया गया था, जिसका पाटोत्सव रामनवमी के दिन मनाया जाता है। आज राम जन्मोत्सव और मंदिर का पाटोत्सव एक साथ मनाया गया। इस मौके पर 101 किलो मावे की केक बनाकर भक्तों को प्रसाद दिया गया। इस मौके पर आयोजित यज्ञ और भजन समेत के धार्मिक कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए। આ મોડાસા શિરડી સાઈ બાબા સત્સંગ મંડળ 1992ની અંદર આ અધારીના તળાવના કિનારા ઉપર નગરપાલિકાના સહયોગથી આ એક મંદિરની સ્થાપના થઈ હતી, જેમાં આજે લાખો ભક્તો દર ગુરુવારે અને દરેક પાટોત્સવે હાજર રહે છે અને આમ આ રમણીય સ્તર ઉપર દિવસે ભક્તોની સંખ્યા ભવ્ય વધે છે।
गुजरात के जूनागढ़ के विसावदर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा राम जन्मोत्सव और स्वामीनारायण भगवान के जन्मोत्सव के मौके पर शोभा यात्रा आयोजित की गई, जिसमें राम जी, सीता जी, हनुमान जी के साथ साथ प्राकृतिक खेती जैसे सामाजिक संदेश देते हुए फ्लोट भी शामिल किए गए, जो लोगों में आकर्षण का केंद्र बने। इस शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में भाविक भक्त और हिंदू संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस मौके पर पुलिस बंदोबस्त भी देखने मिला। आज रोज विसावदर मुकामे विसावदर नगर અને વિસાવદર ધાર્મિક સમિતિઓ દરેક દ્વારા વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ અને બજરંગ દળ દ્વારા આજ રોજ શ્રી રામ જન્મોત્સવની ભવ્યાતિ ભવ્ય ઉજવણી કરવામાં આવેલી છે, જેમાં દરેક ધાર્મિક સંસ્થાઓ તેમજ દરેક હિન્દુ ભાઈઓ હિન્દુ બહેનોએ ભાગ લીધેલો છે અને આજ રોજ ભવ્યાતિ ભવ્ય શોભાયાત્રા લઈ અને વિસાવદર નગરમાં અમે હાલ દરેક પ્લોટ લઈને નીકળ્યા છીએ। આ રામ જન્મોત્સવની અંદર વિસાવદરની બધી જ સંસ્થાઓએ ખૂબ ઉત્સાહપૂર્વક ભાગ લીધેલ છે, તેમજ આ સંસ્થાઓ વિસાવદરની અંદર મુખ્ય માર્ગો ઉપર ફરી અને રામજી મંદિરે રામ જન્મ उत्सव ઉજવી અને બપોરે આ કાર્યક્રમ પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે। सुरेंद्रनगर के लखतर में भी राम महल में भगवान रामचंद्र का जन्मोत्सव मनाया गया। भगवान रामचंद्र का जन्म त्रेता युग में चैत्र मास की शुक्ल तिथि को नवमी के दिन हुआ था। माता कौशल्या की कोख से जन्मे भगवान राम जी के मंदिर पूरे विश्व में है। लखतर के राम महल के रामजी मंदिर में भी रामचंद्र जी का जन्मोत्सव श्रद्धा के साथ मनाया गया। इस मौके पर लखतर की प्राथमिक नागरिक सरपंच रंजन पटेल समेत के अग्रणी उपस्थित रहे। गुजरात के सुरेंद्रनगर जिला के धांगध्रा के शहरी और ग्रामीण इलाकों में इन दिनों जहरीले सांप लगातार दिखाई दे रहे हैं, जिससे लोगों में दहशत है। धांगध्रा के सज्जनपुर में किसान घनश्याम पटेल की वाड़ी में एक सांप देखा गया, जिसकी जानकारी धांगध्रा वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम को दी गई। इस टीम ने मौके पर पहुंचकर अनार के पेड़ से जहरीले कोबरा को सुरक्षित रूप से पकड़ा। वहीं दूसरी ओर धांगध्रा की ओमिया पार्क सोसाइटी इलाके में भी सांप देखा गया। सांप पकड़ने वाली संस्था का संपर्क कर सांप को सुरक्षित रूप से रेस्क्यू कर जंगल इलाके में छोड़ दिया गया है। वीएनएम न्यूज स्टूडियो से ये थी दिन भर की खबरें। वीएनएम टीवी की खबरें आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लाइव देख सकते हैं। आप डेली हंट, जियो टीवी और वोडाफोन टीवी पर 24 घंटे देख सकते हैं वीएनएम न्यूज। तो देखते रहिए वीएनएम टीवी। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।